اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی امت کا ایک بیہودہ خبیث لعین آدمی، ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی شادی میں طوائفوں کے مجرے پر ان کے قدموں میں 50,000 کی گڈیاں لا کر کے نچھاور کر رہا ہے، 1 لاکھ روپے لا کر کے مجرا کرنے والیوں کے قدموں میں ڈال رہا ہے، طوائفوں کے قدموں میں ڈال رہا ہے۔ اور جو اللہ کی بغاوت میں مشہور لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مشہور لوگ ہیں، ان کے مجرے میں 1 لاکھ روپے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال جل وعلا في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بغيرنا فليس منا وفي رواية من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، جنم لڑکپن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں پڑے ہیں دوستو، وہ گلیاں خوشبو، وہ کوچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مہمانوں کو بلا کر کے بھاگ جانا یہ کوفیوں کی خاصیت ہے، اور ڈٹ کر کے مہمان کے شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر کے اس کا ساتھ دینا، یہ صوفیوں کی علامت ہے۔ صوفیوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور کوفیوں پر اب تک لعنت برسائی جا رہی ہے۔ بھائی جو لوگ چلے گئے
اگر کسی مجبوری میں گئے ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر ایمان کی کمزوری انہیں لے کر گئی ہے تو بغیر تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے میں ان سے کہوں گا کہ آ جاؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو جو بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں وہ بلا شبہ بد نصیب ہیں۔ نہ جانے کتنی شامیں کس کس کے نام، ایک شام اگر مصطفیٰ کے نام قربان کر دی جائے گی تو کیا موت آ جائے؟ تو بولو اس کے لیے تیار ہے نہیں؟ اب پوری رات تو میں بولوں گا نہیں، 10-20 منٹ کی بات ہے، ظاہر ہے کہ 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، میرا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس تاریخ میں بلایا گیا ہے اس میں اگر زحمت دی جائے گی تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھر تاریخ بدلی ادھر ہماری گفتگو ختم۔ تو بہرحال ماشاءاللہ جو گئے انہیں جانے دو، بہت پچھتائیں گے، بتایا نہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ گزارش سے پہلے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے؟ چاہتے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ، اگر نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام چاہیے تو صحابہ کی طرح آپ کو مجمع میں بیٹھنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام کے طریقے پر بیٹھیں گے تو اثرات بھی مرتب ہوں گے، فیضان بھی اسی طریقے سے وارد ہوگا۔ اس لیے جو حضرات دور بیٹھے ہیں، جیسے کسان یونین کا دھرنا دینے آئے ہوں، ان سے میں کہوں گا کہ یہ دھرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب کی مجلس ہے۔ قرینے سے یہاں بیٹھو، یہاں ایمان سنورتا ہے۔ قریب قریب آ جاؤ اور جم کر کے بیٹھ جاؤ، پھر بات شروع کروں۔ ماشاءاللہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے اگر اردو سمجھتے ہوں، یقیناً سمجھتے ہوں گے، تو ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مل مل کے بیٹھ جاؤ۔ بس اب تھوڑی دیر کی محفل ہے، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یا آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یہاں کوئی قرار پکڑنے تھوڑی آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا۔ ابھی میں ہوں، صبح محفل برخاست ہوگی، تلاش کرنے میں کوئی نہیں ملے گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لو اور بات میں شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات سے جو چیزیں متعلق ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ عالی شان صفت ہے۔ کوئی بھی صفت اگر آپ لے لیں اور آپ غور کریں کہ دنیا میں اس صفت کا حامل کوئی اور بھی بشر ہے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر یہ خوبی جس نمایاں انداز میں پائی جاتی ہے، اس نمایاں انداز میں دنیا کے اندر کسی شخص میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو لے لیں۔ دنیا میں بہت سے حسین گزرے، بہت سے خوبصورت گزرے، جن کے حسن کی مثال دی جاتی ہے، جن کی تعریف کی جاتی ہے، جن کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور لوگ جن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، جن کے سلسلے میں چرچے ہوتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر حسین کائنات میں کوئی گزرا ہے؟ نہیں۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلة حمراء۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا، میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، میں نے محسن انسانیت کو دیکھا، میں نے کائنات کے دلوں کی دھڑکن کو دیکھا۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر آپ ٹہل رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر لال جوڑا ہے۔
فجعلت انظر الیہ کہ فی لیلۃ اذحیان چاندنی رات میں میں نے دیکھا ہے، چاندنی رات ہے، شباب پر چاند ہے، نور بکھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر کبھی نگاہ ڈالتا ہوں محبوب رسالت پر، بطحا کے چاند پر، اور کبھی دنیا کے چاند پر، فلہو احسن عندی من القمر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند میں تو چھاؤں ہے، محبوب کبریا کا چہرہ صاف ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو چھاؤں ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اتنے حسین کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی میں بستر میں پیوند لگایا کرتی تھی، چراغ گل ہو جاتا تھا، ہواؤں کی وجہ سے سوئی گر جاتی تھی، سوئی نظر نہیں آتی تھی، ادھر میرے آقا گھر میں گھستے تھے، آپ کے رخ روشن کی چمک کی وجہ سے سوئی نظر آ جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء میرا بھی ایک سورج ہے، زمانے والوں کا بھی ایک سورج ہے، میرا سورج نکلتا ہے عشاء کے بعد، لوگوں کا سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد۔ اللہ کے نبی کو سورج سے تشبیہ دے رہی ہے، اور آخر کیوں نہ دے، اللہ کے نبی کا حسن ہے ہی ایسا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور اتنے حسن و جمال کا مرقع اور پیکر مجسم کہ اللہ پاک نے فرمایا جبریل تم تو حضرت آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ تک سب پر وحی لاتے ہو، اللہ کا پیغام لاتے ہو، اللہ کی بات لاتے ہو، اے جبریل یہ بتاؤ کہ کائنات میں تم نے محمد الرسول اللہ کی طرح کوئی خوبصورت بچہ دیکھا ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں شیخ سعدی کی زبان میں آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوب دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، اے اللہ پوری کائنات کا چکر لگایا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میں پھرا ہوں، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا، ذرہ ذرہ ملاحظہ کیا، لیکن ربا میں نے محمد الرسول اللہ جتنا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، مگر روئے محمد پر فدا سارا زمانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل تم کہاں سے دیکھ لیتے، میں نے آج تک کائنات میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن بے مثال، حسن و جمال کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ہے۔ یہی وہ حسن ہے جس کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں اخی یوسف صبیح وانا ملی، میرے بھائی یوسف گورے چٹے تھے اور میں ملی ہوں، یعنی اگر کوئی مجھے ایک بار دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کی تمنا کرے، میں اتنا حسین ہوں۔ بہرحال حسن ملا تو لاجواب، شاندار، حسن کی کوئی مثال نہیں، اور شجاعت و بہادری ملی تو بھی بے مثال۔ اتنے بہادر میرے نبی، کائنات میں آپ نے رستم و سہراب کا قصہ سنا ہو تو سنا ہو، کائنات میں آپ نے دنیا بھر کے سورماؤں اور بہادروں کا واقعہ سنا ہو تو سنا ہو، لیکن دنیا بھر کے بہادروں کی بہادری ایک طرف، دنیا بھر کے سورماؤں کی دلیری کا واقعہ ایک طرف، دنیا بھر کے شجاع اور دنیا بھر کے بصالت والے مردوں کی بصالت ایک طرف، کائنات میں محمد الرسول اللہ جیسا نڈر، جیسا دلیر کائنات میں کسی مائی کا لال کوئی کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، کسی کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ غور کیجئے گا، رکانہ عرب کا مشہور پہلوان ہے، رکانہ اتنی طاقت اللہ نے اسے دی ہے کہ کوئی اس سے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ عکاظ کا میلہ لگا ہوا ہے، مکے میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اکھاڑے میں لڑائی جاری ہے، کشتی ہو رہی ہے، نبی پہنچے رکانہ کے پاس، وقت کا انتہائی خطرناک سوار، عرب کا مرد شیر رکانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے
मैदाने कुश्ती में जाकर के उससे कहा, रुकाना, क्या तुम मोहम्मद का कलिमा पढ़कर मुसलमान होते हो? इतनी बहादुरी तुम्हें अल्लाह ने दी है, इतनी ताकत अल्लाह ने तुम्हें दी है, अखाड़े के दांव पेच से तुम वाकिफ हो, पूरे अरब में कोई तुमसे मुकाबले के लिए सामने नहीं आता। ऐ रुकाना, काश तुम कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दोज़ख से बच जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। इतना हसीन बदन जहन्नम का ईंधन बने अच्छा नहीं लगता। रुकाना कहने लगा, मोहम्मद, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं तो तुम मुझसे दो हाथ करने के लिए पहले तैयार हो जाओ, कुश्ती का मुकाबला लड़ो, तब जा करके मैं तुम्हारा कलिमा पढ़ करके मुसलमान होता हूँ। गौर कीजिएगा भाई, स्टेज पे आना जाना मत लगाओ, बस 10-20 मिनट की बात है। और जो लोग बैठे हो गौर से सुन ले, जो यहाँ बैठे रहें, अपनी ज़रूरतें रोक करके, अच्छा सा नहीं लगता, बिल्कुल बेकार सी बात है। यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा माहौल खराब हो जाता। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब रुकाना से कहा मुसलमान हो जाओ, तो क्या कहा? मुझसे कुश्ती लड़ोगे, अगर कुश्ती में पछाड़ दोगे तो मैं कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अब जाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अखाड़े में किसी भी मैदान में कुश्ती नहीं लड़ी, कभी आपने कसरत नहीं किया, कभी आपने ऐसी वर्जिश नहीं की, कभी आपने जो पहलवानी के दांव पेच हैं उसको कभी नहीं सीखा। सहाबा लरज़ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रुकाना, मुझे तुम्हारी पेशकश मंजूर है, मैं तुमसे लड़ूंगा, कुश्ती लड़ूंगा, अगर तुम्हें पछाड़ दिया तो कलिमा पढ़ करके तुम मुसलमान हो जाओगे, ये तुम्हारा अगर वादा है तो मैं तुमसे कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। भला बताओ तो सही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी वो सिफत है जिसने रुकाना से भी टक्कर लेने पर मेरे नबी को मजबूर किया? ये शुजाअत और बहादुरी है कि अरब के मैदाने मर्द मैदा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ललकारा है और कहा है, रुकाना, मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा, मैं तुम्हें अखाड़े में पछाड़ूंगा। सहाबा कह रहे हैं, अल्लाह के नबी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने कभी कुश्ती सीखी नहीं, आपने किसी पहलवान से कभी कोई सबक लिया नहीं, आपने दांव पेच जाने नहीं। ऐसा ना हो कि आपको ये पटख दे, आप शिकस्त खा जाए, आप हार जाए तो आपकी बदनामी हो, आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, इस्लाम की बदनामी होगी, हमारी हो तो हो, लेकिन हम आपकी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह के नबी अखाड़े में आ गए, कहने लगे, मेरे सहाबा, तुम समझते हो कि शायद मैं यूं ही अखाड़े में कूदने को बेकरार हो? सुनो, तो अल्लाह के ताकत के भरोसे पर कदम आगे बढ़ाता है, कभी पीछे कदम नहीं हटाता। मैं अपने ताकत के बलबूते पर नहीं, अल्लाह ने मुझे बहादुरी दी है, ताकत दी है, और अल्लाह के एतमाद पर मैं मैदान में कूदने के लिए तैयार हूँ। चले गए, किससे मुकाबला हो रहा है? रुकाना से, वक्त का खतरनाक किस्म का पहलवान, अरब का दिलेर मर्द, जिससे कोई मुकाबले के लिए कभी सामने नहीं आता है। अंगुष्ठ बदंदा है, पूरा अरब तमाशा देख रहा है, बेजोड़ कुश्ती है। अभी तो रुकाना उंगलियों पर उठा करके नबी को अखाड़े से बाहर फेंक देगा, लेकिन जब लड़ाई होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकाना को उठाया और उठा करके ऐसे पटखा जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाते हुए बिस्तर पे पटख देती है। रुकाना ने कहा, नहीं, ये नहीं माना जाएगा, आप फिर मुकाबला कीजिए, फिर मुझसे कुश्ती लड़िए। 3 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुश्ती लड़ी और तीनों बार पछाड़ दिया। रुकाना उसके बाद आजिज आकर के फिर शर्त के मुताबिक ईमान लाकर कलमे इस्लाम को पढ़ करके ईमान के दामन से वाबस्ता होता है और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात में इजाफा होता है। बताना ये है कि मेरे नबी बुज़दिल नहीं थे, मेरे नबी निडर थे, किसी से नहीं डरते थे। कायनात में कोई मई का लाल कभी नबी को डरा नहीं सका है। अल्लाह के नबी खुद भी नहीं डरते थे। आपको याद होगा, तारीख दानों ने बारहा बताया होगा, ग़ज़वे हुनैन है, नबी के सहाबा की लड़ाई चल रही है, उधर से दुश्मनों ने तीरों की बौछार कर दी, खतरनाक किस्म के तीरंदाज मोर्चे संभाल कर तीर चला रहे हैं
और नौखेज सहाबा के कदम पीछे हटने लगे। नबी ने देखा सहाबा पीछे हट रहे हैं, आप अपने घोड़े की पुष्ट पर बैठ करके आगे बढ़े और आप ये जुमला पढ़ रहे थे, अनन नबीउल्ला कज़िबान इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, सच्चा नबी हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अगर कायनात में किसी की माँ ने दूध पिलाया है, आए मेरे साथ मुकाबला करे। नबी की जुरात देख करके सहाबा भी पीछे से पलटे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल करके लड़ने लगे। यही नहीं, और भी बहुत सारे मौके आए। मदीने में शोर हुआ कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है, डाकुओं ने हमला कर दिया है। लोग देखने के लिए मदीने से बाहर निकले, देखा कि अल्लाह के नबी घोड़े की नंगी पुष्ट पर बैठ करके पूरे मदीने के चक्कर लगा कर आ रहे। सहाबा से कहते मुतमईन रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं देख करके आया। यहाँ रुक करके मेरी एक बात सुन लो, जो मेरे दिल का दर्द है, जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया आपको डराने के डर पे है, झुकाने के डर पे है। कोई चाहता है आप अपने सर को उसके कदमों में डाल दो, आपको फैसिलिटी देगा, आपको पैसे देगा, आपको ओहदे देगा, आपको मनसब देगा, आपको बंगले देगा, आपको अच्छी जिंदगी देगा, आपकी दुनिया को जन्नत बना देगा। दुनिया कह रही है ऐ मुसलमानों तुम डर जाओ, खौफ दिलों में बिठा लो, जो मैं कहूँ वो करो। उनसे बताने की जरूरत है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमारी जिंदगी की डायरी में डर कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम तो सहाबा के गुलाम हैं, उन सहाबा के गुलाम जो मौत को सामने देखते थे तो उनके होठों पर मुस्कुराहट होती थी, जो मौत को सामने देखते थे तब कभी तारी नहीं होती थी, बल्कि मौत से दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ते थे। किसी शायर ने कहा है, गलत नहीं कहा है, कि शेर की आमद है किरण कांप रहा है, एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। मेरे नबी के सहाबा बुज़दिल नहीं थे, मेरे नबी के सहाबा डरपोक नहीं थे, मेरे नबी ने सहाबा को बहादुरी सिखाई है। मुसलमानों, दुनिया वालों को पैगाम दो, हम उसी नबी के उम्मती हैं जब जिस नबी के ने 313 के लश्कर से 1000 के मजमे में खलबली मचा दी थी, जिस नबी के एक फर्द ने न जाने कितने मजमों को तितर बितर करके रख दिया था। इसे हमें डराने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ दिलाने की जरूरत नहीं है। मौत आनी है, आएगी, एक बार आएगी, अपने वक्त पर आएगी। जो वक्त में जो मुक़द्दर में लिख दिया हो गया है वो होकर के रहेगा। इंसान जो अल्लाह ने लिख दिया कोई उसको टाल नहीं सकता। इसलिए कोई अगर हमें पहले डराता था, सहाबा को डराता था, ताबईन को डराता था, तबे ताबईन को डराता था, आगे आते थे जुरात के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ कि मुझे मत डराओ, क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों, क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों। हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है, हम दरियाओं में कूद गए हैं, हमने आग का दरिया पार किया है, हमने सहराओं को अपने पैरों के पर्वत, अपने पैरों के ठोकर से पर्वत को राई बनाया है, सहराओं को कुचला है, दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख नहीं है। आज इतरा रहे हो, आज पहनकर नई कबा, दामन था तार तार, अभी कल की बात है। जरा सी हुकूमत क्या मिली, हुकूमत के नशे में इतने चूर हो गए कि हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज करने लगे। हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजाइब घरों में रखे हैं। हमारे पुरखों की तारीख पढ़ो तो पता चलेगा कि यहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं है। सहाबे किराम के सामने यहूदी आए, ईसाई आए, रोमी आए, नसरानी आए, मजूसी आए, साबी आए, मुशरिक आए, यहूदो नसारा ही नहीं, कैसरो किसरा पूरे दबदबे के साथ, जाहो जलाल के साथ सहाबा के कदमों में हायल होने की कोशिश की। सहाबा ने कहा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामा निशा हमारा, और बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।
कोई हमें डराने की कोशिश न करे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये बात हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। हम कभी किसी के सामने नहीं झुके, हमने चापलूसी नहीं की, हमने तमल्लुक से काम नहीं लिया। ये गर्दन अल्लाह ने बनाई थी, जब भी झुकाया अल्लाह के सामने, गैर के सामने ये गर्दन हमने कभी नहीं झुकाई है, अपने अल्लाह को सजदा किया है। गैर ने अगर ये चाहा है कि करोड़ों की दौलत तुम्हारे कदमों में रख देंगे, एक बार सिर्फ सजदा कर लो। हमने अपने पैरों की जूतियों पे नोक पर रख करके करोड़ों की दौलत को उड़ा दिया है, कभी बातिल के सामने हमने सर नहीं झुकाया है। ये हमारी तारीख रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी की सीरत का इंतहाई अहम गोशा शुजाअत व बहादुरी है। तो इंशाअल्लाह हम भी बहादुर बनकर जिएंगे, किसी को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ने की कोशिश करे तो हम लोग मैतर भी नहीं हैं। हम जुल्म बर्दाश्त न जुल्म करते हैं, न जुल्म बर्दाश्त करते हैं, न जुल्म किसी पर करते हैं, और न मजलूम बनकर के जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। हमारा ये दावा है, हमारे मौकिफ है, हमारे नजरिया है कि मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम जुल्म क्या होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम जुल्म क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। ये हमारा अकीदा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी एक सिफत है जो बहुत नुमाया सिफत है। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? कोई परवाह नहीं, जो गए उन्हें जाने दो यार। जो मौजूद हैं वो टकटकी बात कर इसी तरीके से देखें जिस तरीके से कि कोई महबूब रिसालत का परवाना शमा के इर्द गिर्द मंडलाने की कोशिश करता। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा, बहुत नवाजेगा अल्लाह ताला। ये इम्तिहान का वक़्त होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक सिफत मिली जिसे कहते सखावत। बहुत सखी के मेरे नबी, बहुत दाता था, जिसको दिया जितना दिया जमाना याद रखेगा, अल्लाह की कसम। हमारे यहाँ तो मरी मुर्गी मुल्ला के नाम यही तो होता है, जब किसी लायक नहीं रह गया वो सामान तो कहते सदका कर दो, पहनते पहनते कपड़ा फट गया तो कहते गरीब को दे दो। कुरान क्या कहता है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंदीदा है वो माल अल्लाह के रास्ते में दोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ये नहीं कि अब मुर्गी मरने के करीब हो गई तो कहने लगे जाओ मस्जिद के मुअज्जिन साहब को हदिया कर दो और सवाब मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सखी थे, इतने बड़े सखी कि अगर हातिम ताई भी नबी का किस्सा सुनता ना, अल्लाह की कसम वो भी शर्म से सर झुका लेता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सखावत और आपके दादो दहिश के किस्से इतने ज़्यादा मशहूर हैं। एक साहब आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, मुसलमान नहीं, काफिर है, नबी का कलिमा नहीं पढ़ा है, गैर है। वो आकर के कहने लगे मोहम्मद तुम्हारे पास बकरियां आई, बकरियां बहुत सारी माले गनीमत में आई थी, हजारों बकरियां। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा मोहम्मद ये बकरियां मुझे दे दो, ये हजारों बकरियां मुझे गिफ्ट कर दो। हम होते तो कहते दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दो चार मांगते तो समझ में आता है, इतनी सारी बकरियां मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं? ना ना, ये नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम्हें जरूरत है? कहा मुझे जरूरत है। नबी ने कहा ले जाओ। हैरत से देख रहा है कि इतनी सारी बकरियां क्या कोई गिफ्ट कर सकता है? मैं रब की कसम खा के कहता हूँ कायनात में कोई कर सके न कर सके, लेकिन ये तारीख अगर किसी के पास है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां दे दी, वो साहिब लेकर के चले, अपने कबीले में पहुंचे, कबीले के लोगों को जमा किया कि वे तुम मोहम्मद की मुखालफत करते हो, तुम मोहम्मद को गालियां देते हो, मोहम्मद के रास्ते में कांटे बिछाते हो, उन्हें पत्थरों से मारते हो, बददुआएं देते हो। तुम्हें मालूम भी है कि मैंने मोहम्मद के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, मैंने कहा मोहम्मद मुझे बकरियां दे दो, मुझे बकरियों की जरूरत है।
हजारों बकरियां उन्होंने मेरे हवाले कर दी। ऐ मेरे कबीले के लोगों, आज के बाद से ऐसे भले इंसान को मैं गाली नहीं दूंगा, आज के बाद से ऐसे भले इंसान को बुरा भला नहीं कहूंगा, ऐसे भले इंसान की राहों में कांटे नहीं बिछाऊंगा, ऐसे भले इंसान को कभी पत्थर नहीं मारूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें मेरी क़यादत पर एतमाद है, मैं जाकर के मुसलमान होने को तैयार हूँ। जिसको मेरे ऊपर भरोसा है मेरे पीछे आए और चल करके वो भी मुसलमान हो जाए। कहा जाता है कि कई सौ लोग एक ही मजलिस में आकर के नबी की सखावत के नतीजे में आकर के सारे मुसलमान हो गए, कलिमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी की सखावत को देखा, दादो दहिश को देखा, गिफ्ट को देखा, हदिया को देखा, नबी के अखलाक को देखा। आज हम भी ऐसा नहीं कि हम सखावत नहीं करते हैं हम भी, लेकिन गुनाह के मौके पर कहाँ करते हैं। अफसोस होता है मेरे भाइयों, अपनी कौम की हालत बताते हुए, ये तकरीर नहीं है, मेरी कौम का मर्सिया है। अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई, एक दिल पसीज जाए, एक आंख नम हो जाए, उस दिल पे खुदा की रहमत हो। जिस दिल की हालत होती है, एक बार खता हो जाए, अगर 100 बार नदामत होती है, मेरा आना कबूल हो जाएगा। बहुत अफसोस के साथ सखावत करते हैं जहन्नम खरीदने के लिए, सखावत करते हैं कब्र में अजाब को नाजिल करवाने के लिए, सखावत करते हैं अल्लाह के गज़ब को आसमान से उतरवाने के लिए, सखावत करते हैं ताकि जमीन की प्लेटें टकराए, ज़लज़ले आए, हम तबाह बर्बाद हो जाए। बताओ तो सही, ये बेगैरती नहीं है, खन्नासियत नहीं है, ये बेखुदगी नहीं है कि बेटे की शादी है, सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं हो रही है, यहाँ निकाह किया जा रहा है, मसला पूछ करके नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं, बल्कि शरीयत और सुन्नत का जनाजा निकाल करके। और कैसे सखावत की जा रही है। शादी में मुजरा हो रहा, मेरा एक बेटा है, सारे अरमान पूरे करूंगा, हसरतें निकालूंगा, उसे नहीं मालूम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी वो कब निकले। इंसान की हसरत निकलने वाली नहीं है। एक बेटा है, शादी होगी, तवाइफें आएंगी, मुजरे होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी उम्मत का एक बेहुदा खबीस लईन आदमी, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की शादी में तवाइफों के मुजरे पर उनके कदमों में 50-50 हजार की गड्डियां ला करके निछावर कर रहा है, 1-1 लाख रुपए ला करके मुजरा करने वालियों के कदमों में डाल रहा है, तवाइफों के कदमों में डाल रहा है। और जो अल्लाह की बगावत में मशहूर लोग हैं, अल्लाह की नाफरमानी में मशहूर लोग हैं, इनके मुजरे में 1-1 लाख रुपए इस उम्मत का निजाम बना है कि उनके कदमों में ला करके उम्मत डाल रही है। नीचे बेगैरत बाप है और ऊपर बेगैरत बेटा है, खन्नास बेटा है, ऊपर से पैसों के पत्ते वो बिखेर रहा है और नीचे बाप बिखेर रहा है। पैर कब्र में लटकाए हुए है, शर्म नहीं आती, कदम सोए मरकद नजर सोए जाना, कहाँ जा रहा है, किधर देखता है, बेगैरती की इंतहा हो गई। ये भी सखावत है, लेकिन गैर शरई अगर कोई खर्चा करता है, शरीयत ने इसे सखावत नहीं बल्कि फजूल खर्ची कहा है, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कौमी यकजहती का प्रोग्राम है। मैं आपको समझाऊं, अपने आप को समझाऊं, किसे समझाऊं? एक बच्चा अस्पताल में अपना पैर रगड़ रगड़ कर मर रहा है, दवाई का इंतजाम नहीं है उसके पास, डायलिसिस का मरीज है, करा रहा है। हम में से कोई उस बच्चे की खबरगिरी करने नहीं गया। कहाँ आए? मुजरा करने वालियों पर पैसे लुटाने, इन खबीसात औरतों पर पैसे लुटाने, डांस करने वाली औरतों पर पैसे लुटाने, इन हिजड़ों पर पैसे लुटाने। वहां नबी का उम्मती, अल्लाह का कोई बंदा, हिंदू था या मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, इससे हमें कोई बहस नहीं। था तो इंसान ना, उसे आपकी हमदर्दियों की जरूरत थी, उसे आपके गमखारी की जरूरत थी, उसके जख्मों पर आप मरहम रख सकते थे, उसके दर्द का दरमा बन सकते थे, उसके लिए गुलदस्ता आप ले जा सकते थे, उसके पास बैठ करके उसकी दिलजोई कर सकते थे, उसकी मिजाज परसी कर सकते थे। लेकिन इतना खतरनाक मिजाज बिगड़ा है, ये गुलगप्पारे उड़ाएंगे, गमछर्रे उड़ाएंगे, ये
इस नुक्कड़ पर बैठ करके, उस नुक्कड़ पर बैठ करके कोई वहां पबजी खेल रहा है, कोई वहां गेम खेल रहा है, कोई वहां बातें कर रहा है, कोई चौराहे पर बैठ करके, कोई किसी होटल में जा करके, कोई इंटरनेट पर उंगलियां दबा दबा करके गंदगी के लपने में मुब्तला है। वही तबाही के माहौल के अंदर अपनी जिंदगी हम बिता रहे हैं। लेकिन कभी अस्पताल की तरफ रुक करके हमने जा करके किसी गरीब की खबर लेने की जुर्रत नहीं की, किसी गरीब की मिजाज कुर्सी की हिम्मत नहीं की। न जाने कितने बच्चे मर गए, दवाई का इंतजाम नहीं था, न जाने कितने मासूमों ने जान दे दी, जख्मों पर मरहम नहीं था, और हम तवाइफों के मुजरे में पैसा लुटाने में मसरूफ हो। और आगे बढ़ो, आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, शौहर का इंतकाल हो जाए, बीवी बेवा हो जाती है, उस बेवा की खबरगिरी हमारे नबी किया करते थे कि नहीं किया करते थे? इतनी खबरगिरी की है कि आप कायनात में मिसाल बन गए। पहली खातून जिसको आप निकाह में लाने वाले हैं वो भी बेवा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 11 बीवियों में सिर्फ एक बीबी कुंवारी है, हजरत आयशा, बकिया 10 सारी की सारी बेवाएं हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने इनकी दाद रसी की, इनके जख्मों पर मरहम रखा है, इनकी कफालत के लिए इन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमाया है। अल्लाह के नबी तो हमदर्दी करे, हम बेवाओं के पास कभी नहीं गए। वो बेवाएं बेचारी बेसहारा, शौहर नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा बेटा कोई नहीं है, रातों में रो रही है, गरीबी का दुख झेल रही है, खाने के लिए रुपए नहीं है, राशन नहीं है। हम मुसलमान बनते हैं, अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं। क्या कलिमा पढ़ने से कोई मुसलमान हो जाता है? कि जब तक अल्लाह के नबी का दर्द, अल्लाह के नबी की कसम, नबी की फिक्र, नबी का किरदार, नबी की तहजीब, नबी की डगर हमें नसीब न हो, तब तक अपने आप को मुसलमान कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। बेवाओं की कफालत की मेरे नबी ने, यतीमों की गमखारी की मेरे नबी ने, और हम बेवाओं को बिल्कुल बगैर यारो मददगार के छोड़ देते हैं। इसी वजह से आज पूरे माशरे के अंदर एक तूफान बदतमीजी बर्पा करके गैरों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। इन बेवाओं के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देख, तेरी कौम के लोगों ने तुझे छोड़ दिया, तुझे राशन का किट कोई देने नहीं आएगा, तेरे जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं आएगा, तुझे बीमारियों में तेरी कौम ने अकेला छोड़ दिया, अब तेरे पास कोई नहीं आएगा। हमारे मजहब में आ जा, हम तुझे फैसिलिटी देंगे, हमारे मजहब में आ जा, इलाज करवाएंगे, हमारे मजहब में आ जा, बेहतरीन अस्पताल में तुझे भर्ती कराएंगे, हमारे मजहब में आ जा, तेरे बच्चों की गारंटी लेंगे। और फिर वो बेचारी रोटियों पर मजबूर, फाका कशी पर मजबूर, वो औरत गैरों के पास जा करके अपने दीन और ईमान को बेच करके मुर्तद हो रही है, कुफ्र को गले लगाकर हमेशा के लिए जहन्नम का सौदा कर रही है। कल कयामत में मेरा नबी खड़े होकर के अगर पूछेगा, वो चौधरियों, वो सेठों, वो साहूकारों, तुम्हारे पास पैसा था, तुम मुजरे में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, अय्याशी में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, बदमाशी में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, शराब नोशी में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, तुमने जहन्नम खरीदने में इस्तेमाल किया, तुम्हारी कौम के नौजवानों के पास पैसा था और ड्रिंक के अंदर मसरूफ था, कोई गोलियां खा करके नशा कर रहा था, कोई इंजेक्शन लगा के नशा कर रहा था, कोई कोरेक्स टॉनिक ही पी रहा था, नशा कर रहा था, कोई सोलेशन सुन रहा था, कोई पेट्रोल सुन रहा था, और कोई आइडेक्स ब्रेड पर लगा करके खा रहा था, और भी नित नए अंदाज नशे के हैं। हमारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस कौम को क़यामत के दिन मुखातब करके अगर ये कहा कि पैसे तेरे पास बहुत थे, लेकिन उन पैसों से तूने जहन्नम खरीदा, अल्लाह को नाराज किया, खुदा के कहर को मोल लिया, खुदा के गज़ब को मोल लिया, खन्नास हट जा, मेरे सामने से हट जा, तुझे हौज़ कौसर का जाम तो दूर की बात है, अरे हौज़ कौसर का एक कतरा भी नहीं मिलेगा मुझे ऊपर पैसे लुटाने वालों, खुदा के गज़ब के मुस्तहिक और रहम व करम के मुस्तहिक हो ही नहीं सकते। आपने नहीं देखा, नहीं सुना, हो सकता है कि मैं कहीं ये बात कह चुका हूं, लेकिन मेरे दिल का दर्द है, मेरी बात सुन। आपको नींद आ रही है? नींद आ रही तो बात खत्म कर दूंगे। अरे बहुत गौर से सुन रहे हो। जो मैंने कहा ना, जो गए हैं बहुत बेचारे बहुत पछताएंगे और कहेंगे कि हम बिला वजह उठ करके चले आए। मजबूरी ये है हमारी कौम की, मुशायरा हो, शायरात स्टेज पर मेकअप लगा के क्रीम पाउडर पोत करके अगर बराजमान हो
तो जो बड़े बूढ़े होते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो भी लाठी पर टेक करके टकाटक बांध करके टकटकी बांध करके देख रहे हो। न पेशाब आएगा न पाखाना आएगा। और दीन की मजलिस में शैतान उंगली करता है तो यहाँ पेशाब भी आता है, घुटने में भी दर्द होता है, भूख भी लगती है, आदमी उठ के चला भी जाता है। खैर मुझे कोई शिकवा नहीं, जिनके मुकद्दर में शहादत है वो तो बैठेंगे, और जिनके मुकद्दर में शहादत ही नहीं है वो तो इसको बोझ समझते। हमारी दाढ़ी से उन्हें वहशत होती होगी, कुर्ता पाजामा देख करके उन्हें डर लगता हो। ऐसी मजलिसों में बैठकर दिल का लगना भी ईमान की अलामत। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, भिवंडी का मुंबई के अंदर महाराष्ट्र का एक शहर है, एक औरत के बारे में पता चला, लड़की के बारे में कि मुर्तद हो रही। मुसलमानों को फिक्र हुई, उसके घर गए, जा करके पूछा, बहना आखिर तुम मुर्तद क्यों हो रही है, क्यों अपने आप को बदल रही है, दीन में कामयाबी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमे में अल्लाह ने आफियत रखी है। जो कलिमे से महरूम हो गया, कायनात की सारी चीज़ें भी अगर उसके कदमों में डाल दी जाए बदनसीबी। उस बहन ने जो बात बताई है रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। कहने लगी, मौलाना साहब बहुत देर कर दिया आपने आते आते, मेरा बाप मर चुका था, मेरी माँ बेवा थी, बीमार थी, मेरे भाई बहनों की पढ़ाई चल रही थी। जब मैंने देखा कि बाप का इंतकाल हो गया, माँ बीमार है, मेरे पड़ोस में बहुत सारे सेठ रहते, कोई नहीं आया, मदद के वास्ते आवाज देता रह गया कोई, मदद के वास्ते आवाज देता रह गया कोई, न अपने घर से तुम निकले न अपने घर से हम निकले, कोई नहीं आया। लड़की कहती है कि मैंने अपनी आधी अधूरी डिग्रियां लेकर के ऑफिसों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, कभी इनके दरवाजे पर जाती, कभी उनके दरवाजे पर जाती। अपनी कौम के एक एक साहूकार के ऑफिस में मैं गई, एक एक आदमी के दरवाजे पर मैं पहुंची कि शायद यहाँ से मुझे मदद मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, किसी ने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। मेरी माँ बीमार थी, मेरी माँ तड़प रही थी, मेरे भाई बहन परेशान थे, खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन कोई मेरी मदद को आगे नहीं आया। बिलाखिर जब मैं हैरान और परेशान आगे बढ़ी तो कुछ गैर आ गए, उन्होंने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और कहा, तेरे अपने रोटी नहीं देते, न दे कोई बात नहीं, लेकिन चल मैं तुझे रोटी देता, चल मेरे पास आ जा, मैं तुझे मकान देता, तेरे भाई बहनों की पढ़ाई का मैं ज़ामिन हूँ, तेरी माँ का इलाज मैं करवाऊंगा। फिर उन्होंने माँ का इलाज करवाया, भाई बहनों की पढ़ाई पढ़ाई, और वो मेरे भाई बहन पढ़ते रहे, मेरे साथ उन्होंने हमदर्दी की। अब ये बताओ कि जब मैंने अपनी कौम के लोगों से मदद मांगी, इनके पास पैसे बहुत थे, बहुत पैसे थे। लड़की कह रही है कि मैंने खुद देखा है कि बर्थडे जब इनके बच्चों का आता था, इनके बेटों का आता था, इनके पोतों का बर्थडे आता था, 1-1 लाख रुपए अपने बच्चों के बर्थडे की दावत में उड़ा देते थे, जबकि इन्हें पता था कि बर्थडे इस्लामी तहजीब नहीं है, मेरे आका की सुन्नत नहीं है, मेरे आका का तरीका नहीं है, गैरों का तरीका है, गैरों की तहजीब है। इसके बावजूद इन्होंने बर्थडे के मौके पर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को नए ड्रेस सिलवा करके दिए, केक काटा गया, हैप्पी बर्थडे का गीत गाया गया और इसमें फजूल खर्ची की गई, लाखों रुपए उड़ाए गए, दावतें मुसल्लम चलाए गए। मैं सिसकती रही, पड़ोस में गरीब सिसकता रहा, भूखे आदमी के पास रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, ओढ़ने को चादर और लिहाफ नहीं है, और ये मुसलमान होकर के खन्नास खबीस आदमी अपने बच्चे का बर्थडे मनाने में मसरूफ था। वो कह रहा है कि बर्थडे मनाने में क्या नुकसान है, दावत करने में क्या नुकसान है, कोई बताए इसे कि लोगों के घर उजड़ गया, मासूमों ने जान दे दी, न जाने कितनी बच्चियों ने, इस वजह से कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है, उसके पास पैसे नहीं है कि मेरे हाथ पीले कर सके, इसलिए मेरे बाप ने रिक्शा चला करके मुश्किल से मेरी रोजी रोटी का इंतजाम किया है। मेरे बाप के अंदर सख्त नहीं है, ताकत नहीं है कि मेरा बाप मेरी शादी कर सके। उन्होंने जान दे दी, पटरियों पर लेट गई, दरियाओं में डूब गई, जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली, मौत को गले लगा लिया। कल मेरा नबी नहीं पूछेगा कि खन्नासो ये बताओ, बदतमीज़ो तुम बताओ, साहूकारो तुम बताओ, दुनिया के सेठो तुम
हमारी उम्मत की बहन बेटियां मौत को गले लगा रही थी, पटरियों पर लेट करके खुदकुशी कर रही थी, दरियाओं में छलांग लगा रही थी, जहर खा रही थी, फांसी के फंदों को चैन कर तख्ते दार पर लटक रही थी, और तुम बर्थडे में मसरूफ थे और मगन थे। उस वक्त क्या जवाब दोगे? मुसलमानों, आग लग चुकी है, माशरे के अंदर तबाही आ चुकी है, इसलिए हम और आप फजूल खर्ची करके जहन्नम न खरीदे, सखावत करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बन जाए। पैगंबर का इरशाद है, अस्सखीउ करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन नार। सखी आदमी जो होता है रब के करीब होता है, मखलूक के दिलों में बसता है, लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जहन्नम से बच जाया करता है और जन्नत में चला जाया करता है। सखी आदमी जन्नत से करीब है बशर्ते कि वो अपने पैसों को अल्लाह के नबी के तरीके पर लुटा करके अल्लाह की खुशनौदी को हासिल करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा में हजरत बिलाल के साथ कहीं जा रहे हैं, हजरत बिलाल साथ में हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक खातून है, बड़ी बी है, बूढ़ी औरत है, रुकी हुई है वहां और रो रही है। अल्लाह के नबी ने रोते हुए देखा तो आपके कदम जम गए। मेरे नबी का मिजाज ये था, खंजर लगे किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए, परेशान हो गए। हम होते तो क्या करते, हादिसात अगर कहीं हो जाए तो हमारी कौम के लोग रुक करके वीडियो बनाते कि सबसे पहले मैं वायरल करने वाला हो जाऊं, ताकि लोग कहें वाह भाई बड़ा शोरमा, बड़ा बहादुर था, बड़ा फेसबुक पर एक्टिव है कि सबसे पहले ये लाइव आकर के इसी ने ये हादिसे का मंजर दिखाया। ये हमारा मिजाज बन गया। हमारे नबी का मिजाज ये नहीं था। रोता हुआ देखते थे, खैरियत मालूम करते थे, जख्मी को देखते थे तो अस्पताल ले जाया करते थे, जख्मों पर मरहम रखते थे, वीडियो नहीं बनाने के रिवाज था। आज मिजाज बिगड़ा, शरीयत इस्लामिया से हम दूर हो गए, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर हम मजबूर हो गए। हमदर्दी का कोई नाम और निशान हमारे अंदर नहीं है। हम लोगों की चीखों को सुन करके अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेते, कहीं ऐसा न हो हमारी नींद उचाट हो जाए। बाइक मांग रहा है जरूरतमंद, नहीं देंगे इसलिए कि 1 लीटर तेल जल जाएगा तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा अगर सामान किसी की जरूरत में काम आ जाए, रब की कसम तेरा नसीबा संवर जाएगा तो जन्नती हो जाएगा। नहीं मालूम है, एक इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, एक शाख लटक रही है दरख्त की, लोग जा रहे हैं, किसी की पगड़ी लगती है तो उससे फंस जाया करती है, किसी की टोपी गिर जाया करती है। एक बंदे के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के बंदों को ये शाख, ये टहनी परेशान करती है, कुल्हाड़ी ला करके उसने वो शाख काट दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसने मामूली अमल किया, लेकिन अल्लाह ने इस अमल की बुनियाद पर उसका नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया, आदमी जन्नती हो गया। और हम कभी किसी के काम आने की सोचते ही नहीं है। रास्तों में कांटे बिछाना हमारा मिजाज है, पत्थर डालना हमारा मिजाज है। याद रखो, अगर किसी के रास्ते में फूलों का सेज नहीं बिछा सकते तो रास्ते में कांटे भी न डालो, ये तुम्हारा मजहब नहीं सिखाता। अगर किसी के लिए दुआओं को सौगात नहीं पेश कर सकते तो कम से कम उसकी गीबतों से अपनी आखिरत को बर्बाद भी न करो, उसकी तौहीन भी न करो, उसकी पगड़ियां भी न उछालो। ये नबी का किरदार नहीं। नबी का ये किरदार है कि मदीने तैयबा में मेरे आका हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा रहे हैं। एक बूढ़ी माँ रो रही है, रुक गए। अम्मा क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई है? अभी बताया ना कि पहले नबी गठरी लेकर पहुंचा दिया करते थे, और बात वाकया साबित नहीं, इससे भी ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी की है। अगर आज किसी को गठरी मिल जाए तो बजाय मंजिल पे पहुंचाने के रफू चक्कर हो जाएगा, 9 2 11 भाग जाएगा कि इसमें सोना होगा। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि नबी रुक गए, बुढ़िया की खैरियत मालूम की, कहने लगी कि मैं एक यहूदन की खादिमा हूँ,
میری مالکن نے مجھے 5 دینار دیے تھے کہ لے جا کر کے تیل خرید کر کے لاؤ. وہ 5 دینار جو میرے ہیں میں نے خریدے تو تیل، لیکن بیٹا میرے ہاتھوں میں راشا ہے، کپ کپی تاری رہتی ہے، اس لیے تیل گر گیا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کے. اب مجھے ڈر ہے کہ جب میں جاؤں گا تو میری مالکن مجھے بہت مارے گی. اور بیٹا میرا جسم بڑھاپے میں کسی کی مار کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. اب میں مار کی داغ نہیں لا سکتی. میں کیا کروں؟ میں رو رہی ہوں کہ اب میں کروں تو کیا کروں. وہاں جاتی ہوں تو مار کھاتی ہوں اور یہاں رکتی ہوں تو کام نہیں بنتا. اللہ کے نبی تڑپ گئے. بلال کچھ پیسے پڑے ہیں؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں. کہا جاؤ اور جا کر کے قرض لے کر کے آؤ کسی سے. جہنم خریدنے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں. 49 روپے لگائیں گے، 49 لاکھ کمائیں گے. سٹوریوں سٹے بازوں نبی کے مشن سے اتنے دور ہو گئے کہ حرام و حلال کا بھی کوئی فرق نہیں. کتے کے پاخانے سے بھی زیادہ بدبودار مال خبیث آدمی کھا کر کے فخر محسوس کرتا. آج اتنے پیسے جیتے. میں نے شرط لگا کر کے میچ پر اتنے پیسے جیت لیے. ارے تو کروڑ پتی بن گیا تو کیا بنا؟ اگر خبیث مال کھا کر کے، کتے اور بلی کا پاخانہ کھا کر کے تیرا پیٹ پھول گیا تو کیا پھولا؟ اس کو ترقی کہتے ہیں. مرنے کے بعد جانور پڑا رہے، 3 دن کے بعد اس کے جسم میں آپ دیکھیں گے کہ نمایاں طور پر ترقی محسوس ہو رہی ہے. جسم پھول گیا. اس مضبوطدار جسم کو پھولا ہوا دیکھ کر کے اگر کوئی اندھا یہ کہے کہ یہ ترقی پر ہے تو میں کہتا ہوں پاگل ہے، دیوانہ ہے. اسی طریقے سے حرام مال کے ذریعے سے اپنے چولہے کو جلانے والوں، اپنے چراغ کو روشن کرنے والوں، اپنے محلات کو سنوارنے والوں، عشرت قضا بنانے والوں، حرام مال سے بنایا تو کیا بنایا؟ اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی ترقی حاصل کی ہے تو یہ ترقی آپ کے لیے قبرستان بن جائے گی. ترقی نہیں ہو سکتی. سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے؟ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گلی کوچوں میں اس طریقے کے منچلے مل جائیں گے حرام کاری کرتے ہوئے. میں کس سے کہوں، کسے سمجھاؤں؟ کاش میری بات کوئی موت سے پہلے سمجھ لے، اس کا کام بن جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال سے کہا بلال قرض لے کر کے آؤ. بلال گئے، قرضہ لے کر کے آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل خرید کر کے نبی نے دیا. ماں پھر رو رہی، اماں اب کیا ہوا؟ بیٹا بات یہ ہے کہ بڑھیا وہ میری مالکن جو ہے کھوسٹ بڑی تند مزاج ہے. میں جاؤں گی تو اس لیے مارے گی کہ اتنی تاخیر کر کے تو آئی ہے، کہاں تھی اب تک؟ لیٹ کر کے جو جا رہی ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ پیٹے گی مجھے. بیٹا ایسا کرو، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، چلو چل کر کے میری سفارش کر دو تاکہ مجھے نہ مارے. اللہ کے نبی چلے، مکہ کی گلیوں سے گزر کر کے پوری بستی پار کر دی. بڑھیا کا گھر نہیں آیا. جنگل میں چلنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اشارہ کر کے ایک جھوپڑی کی طرف بتایا کہ یہ میرے مالکن کا گھر ہے. نبی رک گئے. بڑھیا اندر گئی، تیل دیا. اس نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ اب تک کہاں تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی میری بات سن لو، میں سفارش کرنے آیا ہوں. یہ تاخیر ہو گئی تھی، ان کا تیل گر گیا تھا، میں نے خرید کر کے پھر سے دیا ہے، لہٰذا تم ستاؤ مت، تم مت مارو اسے، یہ بوڑھی ہے، اللہ تمہیں صلہ دے گا. اس عورت نے اللہ کے نبی کو جب دیکھا، آپ کے چہرے انور کو، اللہ اکبر، ہدایت کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے. کہنے لگی میں اب کیا قیامت تک کبھی سے نہیں ماروں گی. تم جیسا سفارش کرنے والا اگر میرے دروازے پہ کھڑا ہو تو اس کی تو ہر سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے کچھ مت کہنا، اور آنے لگے. اس عورت نے، یہودن نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا. بلال یہ بتاؤ کہ یہ کون آدمی ہے؟ میں نہ تمہیں جانتی ہوں نہ انہیں جانتی. تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ سفارش کرنے کے لیے میرے دروازے پہ آنے والی یہ ہستی کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی، یہ وہی رسول ہے اللہ نے جنہیں اپنا نمائندہ بنا کر کے آخری رسول کے طور پر دنیا میں ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا. یہ
अल्लाह के आखिरी रसूल है, नबी है। कहने लगी बुलाओ, वाक़अतन अल्लाह के रसूल है। ऐसा आदमी जो लोगों का इतना बड़ा हमदर्द हो, गमगुसार हो, लोगों के काम आने वाला हो, लोगों के जख्मों पे मरहम रखने वाला हो, लोगों का ताउन करने वाला हो, तो ऐसा आदमी झूठा नहीं हो सकता। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि नबी के डगर पर अगर चलोगे, नबी की शुजाअत को अपनाओगे, बहादुरी को अपनाओगे, दुनिया में कोई माई का लाल आपका बाल बेका नहीं कर सकता। नबी की सखावत को अपनाओगे, नबी के अखलाक को अपनाओगे, कायनात में कोई माई का लाल कभी भी तुम्हें मिटा नहीं सकता। ये अल्लाह का, उसके रसूल का वादा है और ये पल्लों से बांध लो। तो क्या तैयार है हम और आप कि इंशाअल्लाह हम नबी के अखलाक को अपनाएंगे? तैयार है भाई? हाथ उठा के बताए सुभान अल्लाह। जो अपने बूढ़े बाप का गिरेबान पकड़ के धक्के देते हो, अपनी माँ को आंसू बहाने पर मजबूर करते हो, ये भला नबी के अखलाक को क्या अपनाएंगे? नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। खौफ खुदा करो। कामयाबी में कहता हूँ, कामयाबी जिसे कहते हैं, सुनो गौर से, रात का ये आखिरी हिस्सा है। अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे आ चुकी है। आपसे भी कहता हूँ, अपने बिरादराने वतन से भी कहता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए अकीदत की बुनियाद पर कहता हूँ, नहीं, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मुताला किया है। इन किताबों के पढ़ने के बाद जो नतीजा निकला है वो ये है, आज नहीं सुबह क़यामत तक अगर इस दुनिया को हकीकी चैन चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के डगर पर इसे बहरहाल चलना ही पड़ेगा, तब चैन मिलेगा, वरना चैन नहीं मिल सकता। तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तुझसे सीखेगा जमाना तेरा अंदाज कभी। इसलिए इंशाअल्लाह हम नबी के डगर पर चलेंगे ना इंशाअल्लाह? सुभान अल्लाह। तो अब अहद करो कि जितने सटोरिए इंशाअल्लाह सट्टा नहीं खेलेंगे, और अगर किसी ने खेला हो तो मुझे अभी बता दो। अभी तो मैंने नाश्ता ही किया, खाना नहीं खाया, मैं खाना छोड़ के चला जाऊंगा। मत करो ऐसा काम गंदा, ये आपके लिए है। ये चीजें हराम की चीजें आपको ज़ेब देती हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, कोई ताज्जुब नहीं, लेकिन हंस कौवे की चाल चलने लगी तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। इसलिए इंशाअल्लाह हम ये अज़्म करते हैं, आइंदा जब अपने घरों से निकलेंगे, इस इरादे से निकलेंगे कि अगर कोई इंसान हमारी मदद का मुस्तहिक निकला तो इंशाअल्लाह उसकी मदद करेंगे। कोई गरीब आदमी हमारे सामने आया, उस गरीब आदमी की बेचारगी इफलास में उसके साथ खड़े होंगे। कोई बेवा नजर आई, इंशाअल्लाह उसकी मदद करेंगे। कोई बच्चा नजर आया, बीमार नजर आया, खून की जरूरत है, खून फराहम करेंगे। पैसे की जरूरत है तो पैसे देंगे। अगर कोई बूढ़ा नजर आया, कपकपाते हुए हाथ के साथ, कपकपाते हुए डगमगाते हुए कदम के साथ उसकी लाठी बन जाएंगे, सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह। हम ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। हमारे नबी ने ये फरमाया है कि मदद करो, और मदद के वक्त किसी का चेहरा या मजहब न देखो। अगर जरूरतमंद है आपकी मदद का, बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत के आप इंसानियत की बुनियाद पर गमखारी करो, आपको सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से दूर हो जाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों के जख्मों का मरहम बनेंगे। अगर कोई इंसान रात में या दिन में जब भी किसी को जरूरत पड़ी हमें आवाज दे, हम अपने बिस्तर को छोड़ करके चरागों के लौ से सितारों के जोर तक वही हम मिलेंगे जहां रात होगी। अगर ये करने के लिए तैयार है तो मैं आप सबसे कहता हूं, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद के फरिश्ते उतर के आएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।